Guys, today we are gonna learn a little about atomic emission spectroscopy. So ये क्या है? ये टेस्ट किया जाता है लूप ऑयल सैंपल जो हम लोग एवरी क्वार्टर लेते हैं. Quarter. That is, we take in sample in March. We take a sample in March. We take a sample then in April. Then we take it in not April. We take it in March. We take it in June. We take it in June. फिर उसके बाद हो गया September. And then we take it in December. So every quarter हम लोग lube oil sample लेते हैं. किसका लेते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी इंजन का लेते हैं, मेन इंजन का लेते हैं, स्टर्न ट्यूब का लेते हैं, अपनी जो हाइड्रोलिक डेक मशीनरीज है, डेक हाइड्रोलिक मशीनरीज उसका लेते हैं, स्टीयरिंग गियर का लेते हैं, इमरजेंसी जनरेटर का लेते हैं. ओके, सो वी टेक द सैंपल ऑफ ऑल दिस मशीनरीज एंड वी सेंड इट टू द लैब, टू द शोर फॉर एनालिसिस. सो दिस इज द पार्ट ऑफ CBM. ओके, दिस सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ CBM. CBM क्या है? कंडीशन कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग. सो हम मशीनरी को खोले बिना मशीनरी के अंदर कितना वेयर है वो जानने के लिए हम लोग ये सैंपल लेते हैं और उसमें ये टेस्ट करते हैं. ओके, सो अपने जो मशीनरी है उसके अंदर दीज आर द वेयर पार्टिकल्स विच वी हैव. ओके, so this wear particles, okay, so we have ferrum, we have copper, we have nickel, we have tin, we have this PP is tin only. Okay, we have antimony, we have vanadium, we have brass, we have bronze, we have aluminium, molybdenum, chromium, we have sodium, seawater. Okay, and many others. If I'm sorry if I'm missing out on something. So we have, these are the few which we have, and so this is the kind of test which you get. So test में देखना कि सब results जो है वो PPM में दिए है, और जब आपका लाइक यू नो एवरी क्वार्टर जब आप सैंपल बेचते हो, लास्ट टेस्ट हुआ था और जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ है वो दोनों टेस्ट के बीच में कंपैरिजन भी होता है. So this kind of test result which you get. So test में other test is we have water content, flash point, viscosity. We have other is water, flash point, viscosity, TBN, total base number, and insolubles. These are the other tests which we have, TBN and insolubles. But right now the prime reason to make this video is we have to concentrate on this part. Okay, so these are the wear particles which we find generally in engine. Engine के various components में, जैसे कि molybdenum है, you can find it in like you know in construction of piston rings and piston. Tin, lead, antimony you can find in bearings. Nickel you can find in bearing, piston ring. Copper you can find on chain and gears. Iron you can find in gear and chain. You can also find iron push rods. You can find iron in the liner. You can find aluminium in construction of bearings. You can find aluminium. Where you can find aluminium else? You can find in bearing. You can find aluminium in piston. Sodium is the sign of seawater. Okay, sodium is the sign of seawater, and vanadium is the sign of fuel derivative. It is a part of fuel. Brass and bronze you can find it in a stuffing box. So these are the overall various elements which you find. So अभी जब lube oil का sample देते हैं, it goes to the lab. Okay. So ये सब एलिमेंट्स हमारे लूब ऑयल में कितने ppm, पार्ट्स पर मिलियन. ppm is nothing but पार्ट्स पर मिलियन.
basically it means 1 milligram per kilogram. Okay, per 1 kilogram. So उसमें ppm में ये मेजर होते हैं, मतलब 5 ppm अगर रिजल्ट आएगा मतलब 5 milligram of for example copper is present in 1 kilogram of lube oil. Okay, so these are the two tests which is done. One is this method, inductively coupled plasma. Inductively coupled plasma, and this plasma is basically a argon plasma. Okay, and you have a rotating disc electrode. So you have a rotating disc and an electrode. Okay, so if ये टेस्ट में क्या होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में ऑयल जो है वो आर्गन फ्लैश पे, आर्गन का जो फायर है आर्गन फ्लैश पे फायर किया जाता है. ओके, so when the oil is flashed on the argon like you know oil is the jet of oil is sprayed on the argon flash, it produces a light, like you know उसमें जो the intensity of the light of this flash will keep on changing. कभी it will become green, कभी it will become blue, कभी it will become like you know the light will keep on changing. So the light which flash is producing, it travels through the fiber optic and it is reflected on the prism. Prism का काम क्या है? Prism कुछ नहीं है, basically एक लाइट है. लाइट जो होती है it is composed of like you know जैसे कि sunlight जो है, sunlight is made up of 7 total like you know different lights. जो white light है ये 7 color से बनती है. Okay, we have Vibgyor light spectrum. So when the sunlight travels to the prism, तो it reflects like you know वो light जो है उसको separate कर देता है कौन कौन से light से बनी है, like you know. So when it is refracted out of the prism, the sunlight, it has 7 rays, 4, 5, 6, 7, V, I, B, G, Y, O, R, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये 7 lights. So basically prism का काम यही है कि जो भी light उसमें अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब उसका रिफ्रैक्ट होती है लाइट, तो वो लाइट जितने भी मिक्सचर से ये पर्टिकुलर लाइट बनी है वो उसको सेपरेट करने का काम करता है. सो द लाइट विच फ्लैश इज प्रोड्यूसिंग ओवर हियर, इट ट्रेवल्स फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक, इट फॉल्स ऑन द प्रिज्म एंड देन प्रिज्म वो लाइट को ब्रेक करता है उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे बनी है, और वो ये फोटो डायोड है उसके ऊपर गिरती है. दिस फोटो डायोड इट मेजर्स द इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ओके, द इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इट मेजर्स. और हर एक एलिमेंट है ये एक डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट इंटेंसिटी पे लाइट जो है वो it emits when it is excited. So basically any atom when it excites, it cannot stay in that same excitation state for a while. जैसे उसकी excitation निकाल देते हैं, वो atom जो है वो light emit करता है. Like you know, अगर एक atom में जब energy आती है वो energy को ज्यादा hold नहीं कर पाता, तो वो energy को छोड़ेगा कैसे? वो light के form में energy को छोड़ देता है, you know, in the form of light. जैसे कि कॉपर रॉड को लाइक या फिर आयरन को जब हम रेड हॉट करते हैं, इट बिकम्स रेड हॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन लाइक यू नो जैसे हीट का सोर्स हमने निकाल दिया या फिर उसके जो एक्साइटेशन जो है वो जब चली जाती है, तो लाइक रेड कलर जो आयरन रॉड का जो रेड कलर है वो भी चले जाता है. व्हेन वी स्टॉप हीटिंग द आयरन रॉड, जो रेड हॉटनेस उसमें जो आई है, आफ्टर अ fraction of seconds, like you know, after 1 or 2 seconds it will just disappear, you know, and you can see just a normal iron. So any element when we heat up it gives light, you know. So basically यही जो principle है atomic emission spectroscopy, ये principle is used to find the wear particles which are present in the lube oil. रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड का भी सेम काम है. देयर इज अ डिस्क, ओके,
वो डिस्क मतलब लाइक लूब ऑयल सेंटर में सैंपल में वो डिस्क को रोटेट करते हैं. सो वंस इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इट विल take some lube oil with it and the hydrodynamic film formation होगा, and then the lube oil film will appear on the surface of the disc, and जो high एक electrode होता है after the disc will start rotating, high voltage electrode of about 10 kV, it goes and it touches the tip of the disc. Okay, so जो tip of the disc पे we have a lubrication oil film. सो ये इलेक्ट्रोड जो है उस पे जो 10,000 kV का जो वोल्टेज है, 10 kV का जो वोल्टेज है, वो 10 kV वोल्टेज जो लूब ऑयल जो है उसको एक्साइट करता है, उसको एनर्जी देता है. तो वंस इट गिव्स एनर्जी टू दैट लूब ऑयल, इट क्रिएट्स स्पार्क ऑफ डिफरेंट कलर एंड वेरियस इंटेंसिटी. ओके, सो जो स्पार्क फॉर्मेशन है, जो लाइट यहाँ पे टिप पे प्रोड्यूस हो रही है, वो लाइट ट्रेवल करती है ये सेम फाइबर ऑप्टिक्स है, इट फॉल्स ऑन द प्रिज्म, और प्रिज्म से मतलब वो जो लाइट जितने भी कंस्टिट्यूएंट से बनी है वो लाइट यहाँ पे सेपरेट हो जाती है, एंड देन द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट इट्स मेजर्ड बाय द फोटो डायोड, एंड अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट दे बेसिकली माइट बी हैविंग अ चार्ट टू कंपेयर कि इतने वेवलेंथ पे ये एलिमेंट देगा, इतने वेवलेंथ पे फॉर एग्जांपल मेरा माई वेवलेंथ इज 1 फेरम का है, 2 कॉपर का है, दे माइट बी हैविंग अ चार्ट जिससे वो लोग कंपेयर करते रहेंगे, एंड दे माइट बी असाइनिंग, एंड ऑल दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन, कि इतना ppm लास्ट टाइम था, एंड द ट्रेंड इज सेट. ओके, बेसिकली ट्रेंड सेट होता है. ट्रेंड मतलब जो लास्ट रीडिंग है उसमें मेरा फॉर एग्जाम्पल कॉपर का मेरा था 5 ppm. ओके, अभी मेरा हो गया है 10 ppm. मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉपर वेयर है जो लास्ट वाला था और जो अभी वाला है, फॉर एग्जांपल जो मेरा लास्ट वाला था वो 5 पे और अभी वाला वो मेरा 10 पे है. सो माय वेयर रेट इज इंक्रीज. सो ये ट्रेंड एनालिसिस भी सेट होती है, और दिस ट्रेंड एनालिसिस कम्स टुगेदर विद योर लूब ऑयल रिपोर्ट as you have seen in the video before, and yeah, that's it. And then the chart is produced, so उससे पता चलता है कि लास्ट 3 महीने में मेरे कॉपर का जो एलिमेंट है उसका वेट ज्यादा पड़ा है. Okay, since we are on the point, we talk about little about insolubles. Insolubles are nothing but your dirt, soot, ash. Basically all all the dirty products are the insolubles, which can all where particles are also insolubles because they are not soluble in oil. Ash is not soluble in oil, soot is not soluble in oil, dirt is not soluble in oil. So insolubles को कैसे निकालते हैं? Purification से. Water को कैसे निकालते हैं? Purification से. फ्लैश पॉइंट मेजर करते हैं. ऑयल का फ्लैश पॉइंट कम क्यों होता है? फ्यूल ऑयल के मिक्सिंग के वजह. जनरली लूब ऑयल have a higher flash point of about 220 डिग्री सेल्सियस. उससे हायर होता है. क्यों हाई फ्लैश पॉइंट क्यों चाहिए? रीजन इज कि लूब ऑयल अगर लो टेम्परेचर मतलब इंजन व्हेन इट इज रनिंग योर लूब ऑयल टेम्परेचर गोज अराउंड 50-60 सो और कूलिंग होते रहता है. लूब ऑयल गोज इनसाइड इंजन अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस एंड कम्स आउट अराउंड 55 to 65 डिग्री सेल्सियस. कभी कभी ओवरलोड होता है तो 65-70 तक भी चले जाता है. सो एट दिस लोअर टेम्परेचर वी डोंट वांट कि ये ऑयल गर्म है तो जल जाएगा, वी डोंट वांट एनी फायर और समथिंग ड्यू टू द हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल. सो दैट्स व्हाई वी वांट और उसके वेपर की वजह से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई द फ्लैश पॉइंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज हायर टू अवॉइड एनी फायर. क्योंकि फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल ऑयल कितना है? 65 डिग्रीज. ओके, 65 डिग्रीज इज और 60 to 65 डिग्रीज इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल ऑयल. ओके, सो उसके बाद उससे ज्यादा हम अगर हीट अप करना चालू करेंगे फ्यूल ऑयल को तो उसके वेपर्स में अगर मैं आग डालूंगा तो इट विल इट विल जस्ट स्पार्क, इट विल कंबस्ट. बट लूब ऑयल इज नॉट द सेम बिकॉज लूब ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर लुब्रिकेशन प्लस इट इज यूज फॉर कूलिंग. सो वी वांट लूब ऑयल विद हाई फ्लैश पॉइंट. अगर लूब ऑयल का फ्लैश पॉइंट लो क्यों होता है? अगर आपके फ्यूल पंप के जो सील्स है
वो अगर लीक करना चालू हो गए, देन द फ्यूल might mix with the lube oil. It might go into the sump, and that's how you will have fuel oil contamination in the lube oil, which will reduce your flash point. Viscosity. हम लोग पढ़ते हैं ISO VG 68, ISO VG 70, whatever we read. So basically this VG is viscosity grade. Viscosity grade 68 at 40 degrees Celsius. Just a second, just let me confirm. Yeah. So ISO VG 68 अगर हम ऑयल के ड्रम पे पढ़ते हैं तो VG is viscosity grade 68. This is the kinematic viscosity of the oil at 40 degrees Celsius, which it says. So viscosity ये original viscosity है 68 at 40 degrees Celsius. So your measured viscosity oil जो है वो plus minus 20% तक चलेगा. At 20% you have to renew your lube oil. मतलब 68 मतलब let's say 70 का 20% is 14. So 68 plus minus 14 तक अगर उसकी viscosity रहेगी at 40 डिग्री सेल्सियस, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर थोड़ी बढ़ भी जाती है, थोड़ी कम भी हो जाती है, बट इट शुड बी प्लस माइनस 14 at 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर प्लस माइनस 20% से वो ज्यादा जा रहा है, देन यू हैव टू रिन्यू योर लूब ऑयल. Okay, and TBN is nothing but the basic number. It's nothing. The TBN is yeah, TBN is nothing but the milligram of KOH in per gram of oil. मतलब कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 1 ग्राम ऑफ ऑयल में. Why do you need hydroxide to fight with the acids? Okay. Acids can be produced. Two types of acid can be produced. One is sulfuric acid. This is जब combustion होता है तो combustion cylinder के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, like once we have exhaust gas में क्या रहता है? We have SOx, we have NOx, we have hydrocarbons, we have nitrogen, we have many things. Okay, so one of the byproduct is SOx, sulfur. तो जब हवा जो रहती है वो तो एटमॉस्फेयर से ही हम ले रहे हैं, तो उसके अंदर माइट भी थोड़ा मॉइस्चर होगा. सो व्हेन दिस मॉइस्चर गेट्स मिक्स विद सल्फर, इट बिकम्स अ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो ये एसिड जो है अपना जो लाइनर जो है पिस्टन जिसमें ट्रैवल करता है, ये लाइनर के वॉल पे जाके डिपॉजिट हो सकता है, लाइक once, but when it is formed, it is in a gaseous state. But if that gas will touch the liner, it will condense it will become in a liquid form. So ये एसिड को बेस एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है ना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ताकि हमारे लाइनर का करोजन ना हो. सो ऑयल इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर, इट्स नॉट एसिडिक. सो एक है जो वो हमें है सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द एसिड इज फॉर्म. अदर इज दूसरा कौन सा एसिड मिलेगा? थोड़ा सोचो. तो दूसरा हम लोग को मिल सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाउ दिस? ओके, तो अगर लेट से सिलेंडर लाइनर में ये 2 स्ट्रोक इंजन का, ओके, 4 स्ट्रोक इंजन का जो है उसमें क्रैंकेस ऑयल में भी हो सकता है. 4 स्ट्रोक सीसी ऑयल, 2 स्ट्रोक सिलेंडर ऑयल. ओके, सिलेंडर ऑयल या 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें अगर क्रैंकेस ऑयल में अगर सी वाटर का थोड़ा भी कंटेमिनेशन रहेगा, तो इन सी वाटर व्हाट यू हैव? सोडियम एंड क्लोराइड. ओके, सॉल्ट. सो इसमें जो क्लोराइड जो है व्हेन इट विल मिक्स विद वाटर, इट माइट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो वाटर वेपर्स जो है उसके साथ अगर ये क्लोराइड अगर आ गया कांटेक्ट में, it might form hydrochloric acid, and this hydrochloric acid same acid है, लाइनर का करोजन कर सकता है. So there are the only two forms. One, acid can be formed from fuel oil. Second is the presence of seawater and your cylinder oil or crankcase oil. In 4-stroke engine crankcase, 2-stroke engine cylinder oil. तो उससे एसिड प्रोड्यूस हो सकता है. तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं. सो व्हेन वी गेट TBN 40 शिप पे हम लोग जब न्यू ऑयल जो होता है, जो जनरली ऑक्सिलरी इंजन के क्रैंकेस का ऑयल होता है,
इट इज एट इट इज ऑफ हायर लाइक यू नो TBN 40, क्योंकि उसको लुब्रिकेशन भी करना है और लाइनर जो है पिस्टन का उसको लुब्रिकेट भी करना है, प्लस उसको एसिड से भी फाइट करना है, इसलिए ये हायर TBN पे होता है AECC का ऑयल। और मेन इंजन सीसी का मेन इंजन सिलेंडर ऑयल होता है TBN जनरली 30, ओके, क्योंकि इट जस्ट हैव टू लुब्रिकेट द लाइनर एंड फाइट विद द एसिड्स। उसको इंजन के दूसरे कंपोनेंट्स को ना ही कूल डाउन करना है ना ही लुब्रिकेट करना है, बल्कि ऑक्सिलरी इंजन में उसको लुब्रिकेट भी करना है, कूलिंग भी करना है, एसिड से भी फाइट करना है। सो द TBN इज लिटिल हायर कंपेयर टू द मेन इंजन सिलेंडर ऑयल। सो ये तो नहीं ऑयल का। एंड एवरी वीकली हम लोग जहाज पे लूब ऑयल टेस्टिंग करते हैं। देयर इज अ स्मॉल सेल, you take the oil sample, put the oil sample inside, you put a reagent and then you close this cell and then you shake it for 3 minutes. 3 minutes के बाद result is obtained on a screen. Okay, 28 BN जो है 28 है, TBN 30, TBN 26, जो भी result मिलता है then we write it down in our log. Okay, and month end में वो जो log का जो sheet है वो हम ऑफिस को भेजते हैं। So वो TBN 26 जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, वो बता रहा है कि अभी खाली 26 मिलीग्राम ऑफ KOH बाकी है एंड पर ग्राम ऑफ ऑयल। नेक्स्ट मंथ लिया तो अभी 22 बाकी है। तो धीरे धीरे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑयल में कम होता है। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि ऑयल इज स्लोली it is becoming less basic. So about let's say 40% of the original, like 40 मतलब TBN 40 का 40% हो गया 16। तो जब 16 के आसपास ऑयल का TBN जब ड्रॉप हो जाता है, at that time you have to renew the sump oil. Okay, so this is the about TBN and बस यही है, that's it, your session is done. I hope I have helped you with everything what I can find out of, and सो TBN तो वही हो गया। TBN का ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कम क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक रीजन है ये फ्यूल ऑयल से फाइट कर रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। सेकेंड थिंग what I can off the top of my head is, अगर ऑयल का हाई टेम्परेचर हो गया, हाँ, if the लूप ऑयल का टेम्परेचर कभी एक्सेसिवली हाई हो गया 80-90 डिग्री पे चला गया, तो अबाउट 80 to 90 डिग्रीज about 80 to 90 about 95 to 98 degrees lube oil starts oxidizing. Okay, ऑक्सीडाइजिंग मतलब अभी अंदर ऑक्सीजन गया है। ओके, अंदर ऑक्सीजन गया है मतलब इट हैज, अभी वो करोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑयल विल दैट ऑयल इज नॉट गुड एनीमोर, इट विल स्टार्ट करोडिंग योर कंपोनेंट्स। वो तो उसको फाइट करने के लिए हम लोग ये डालते हैं बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ऑयल को बेसिक बनाते हैं, ताकि अगर अंदर ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर ले, ऑयल को एसिडिक ना बनने दे। सो अगर कभी ऑयल का टेम्परेचर अगर हाई जा रहा है तो उसके वजह से भी आपका जो TBN है वो डिप्लीट हो सकता है, बिकॉज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग to make sure the oil oil stays basic at all the time. It should not become acidic. So this is one of the reason. Or bas, that's it. I hope this lecture was very helpful to you guys, and basically this is everything you need to know about the lube oil report. Okay, about the lube oil report which we send every quarter, the Marine lube oil report. We will talk about the properties of lube oil, properties and additives, कि कौन सा एडिटिव क्यों यूज किया था। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम एंड पोटेशियम को हम लोग यूज करते हैं उसका बेसिक नंबर बढ़ाने के लिए। ओके, मोलिब्डेनम जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए करते हैं। ओके, सो बाद में जो
क्रोमियम है, क्रोमियम को उसको फ्रिक्शन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑयलीनेस जो है उसके लिए करते हैं। एंड मैग्नीशियम जो है करोशन से बचाने के लिए करते हैं। सो फॉर प्रॉपर्टीज एंड एडिटिव्स ऑफ लूप ऑयल आई एम गोना हैव अ सेपरेट चैप्टर, सेपरेट वीडियो जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज एंड एडिटिव्स ऑफ लूप ऑयल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। ऑलराइट, थैंक यू।